Jai Narayan, dear student. Good morning. I am Vaibhav Jaiswal and I am going to start with our new chapter, that is chapter 2, Structure of Atom of Chemistry. And the topic which we are going to study is Niels Bohr, and I am going to demonstrate an activity. So please watch it carefully. Now suppose this is an nucleus. Suppose this is an nucleus and this is an electron. This is an electron and this is the specific orbit known as cell. This is the specific orbit which is known as cell. Suppose the name of this cell is K cell, this is present. Now what the Niels Bohr said in 1930, that electrons revolving around the nucleus in a specific orbit, and these orbit have definite energy which we call cell or energy level, and the numbers of electrons present in the any energy level or cell can be calculated by the formula 2n square. Like suppose this is the K cell and we can say that it is the first cell, so kn square, putting the value of n is equal to 1, k in K cell we get 2 into 1 square, that is equal to 2 electrons. Maximum electron that can accommodate in K cell is 2. Now in K, L, M, N cell respectively we have 2, 8, 18, 32 electrons, and this is calculated by the formula 2n square, where n is the orbit number. So student, first we are going to see the topics which has been reduced by the CBSE for class 11th in chapter 2, Structure of Atom. So the topic which we are not going to cover is discovery of electron, proton and neutron, atomic number, isotopes, isobars, Thomson model and its limitation, Rutherford model and its limitation. So these topics we are not going to cover, as CBSE board has reduced this topic in the chapter 2. So coming to the next slide, we are going to start with the topic that is Bohr's atomic model. After the failure of the Rutherford model, the model given by the Bohr was accepted, and the main postulate for the Bohr atomic models I have been written here. So starting with the first postulate, that was atom has a center which is called nucleus. We have also seen that in between the center here is the nucleus, and electron revolve along the boundary of the electron revolve around the nucleus. So this was also said by the Bohr also, that atom has center called nucleus. Now coming to the second postulate of the Bohr atomic model, that is electrons revolve only, this is the main important point, that electron revolves only in fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity. बेटा यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स जो होंगी, देखिए वो फिक्स्ड होती हैं, के एल एम. सपोज़ मैंने 3 ऑर्बिट ले ली, एक के एंड सेकंड वाली जो है आपकी वो एल है एंड थर्ड वाली एम है. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये न्यूक्लियस है बीच में. इलेक्ट्रॉन्स जो सपोज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेंगे फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के में या तो एल में या तो एम में विथ फिक्स्ड एनर्जी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन के सेल में है इसकी एनर्जी फिक्स होगी, एल वाले की भी एनर्जी फिक्स होगी और एम वाले की भी एनर्जी फिक्स्ड होगी, और इनकी जो वेलोसिटी होगी, जितनी तेज़ ये इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड होगी. ये नील बोर ने बताया. इससे पहले जो आपके रदरफोर्ड थे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द वेकेंट स्पेस नियर द न्यूक्लियस.
उन्होंने कहा जो स्पेस खाली वहाँ पे वो रिवॉल्व करेंगे, और उन्होंने ये भी नहीं बताया था रिवॉल्व करते समय अगर इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, और क्योंकि पता है जो भी चीज़ें मोशन में होती हैं वो आपके रेडिएशन इम्पार्ट करती हैं, तो रेडिएशन अगर ये इम्पार्ट कर रहा है तो एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो उनका फेलियर इसीलिए हुआ था कि जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आकर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और नील्स बोर ने इसको डिफ़ाइन किया था। हम लोग देखते हैं अभी आगे। तो सेकंड आपको क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ये सबसे मेन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोर ने दिया, क्योंकि जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल था इसी की वजह से फेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था, ऑर्बिट उन्होंने फिक्स नहीं करी थी, एनर्जी के बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था, दैट्स वाई। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ थर्ड जो पोस्टुलेट नील्स बोर ने दिया वो था क्वांटाइजेशन एनर्जी, या हम कह सकते हैं सिंपली क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होता क्या एक्चुअल में, इसको अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, सी एंगुलर मोमेंटम इट्स डिनोटेड बाय L, is integral multiple of h by 2 pi, h by 2 pi। अब समझते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट कर सकते हैं, L इज़ इक्वल टू NH बाय 2 पाई। जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स इंटीजर, जैसे कि हम लोग पढ़े ना, तो वहीं से इंटीग्रल आ गया। इंटीजर की वैल्यू जो भी होगी 1, 2 या 3, 1/2 नहीं हो सकती, 1/3 नहीं हो सकती, 1, 2 या 3 वैल्यू होगी, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला आया था एंगुलर मोमेंटम का, L इज़ इक्वल टू NH बाय 2 पाई, जहाँ पे N जो है वो आपका एक इंटीजर की वैल्यू है, और वहाँ 1, 2 या 3 सो ऑन इस तरीके हो सकता है। सपोज़ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि टेल मी दी इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू NH बाय 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट मीन्स N हो गया 3H बाय 2 पाई। तो क्या आ गया मेरा एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 3H बाय 2 पाई। तो यहाँ तक बेटा आप लोग को क्लियर है। चलिए अब हम एंगुलर मोमेंटम होता क्या उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टर्म आया है एंगुलर मोमेंटम। होता क्या एंगुलर मोमेंटम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट कर सकते हैं L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। यहाँ पे ये जो P है ये है आपका मोमेंटम, दिस इज़ मोमेंटम। और मोमेंटम का जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं P इज़ इक्वल टू mv। सबको बेटा पता होगा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इंटू mv। तो यहाँ पे जो आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं मोमेंटम का भी, जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम का भी मूवमेंट। अगर हम मोमेंटम का मूवमेंट कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। बहुत सिंपल टर्म्स में समझिएगा। सपोज़ हमने एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करना है, ये रेडियस है मिडिल वाला R, यहाँ से यहाँ रेडियस से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो एंगल बना रहा है ये बनाएगा आपका 90 डिग्री का। ऊपर की तरफ ये जो है वेलोसिटी से कोई, सपोज़ ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जो मिडिल में है यहाँ पे ये इसका रेडियस है। तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। कहीं पे भी आप देख लीजिए, सपोज इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इधर तरफ मूवमेंट कर रहा होगा, और इसका जो मास होगा वो कितना होगा?
मास आपका इसका होगा m, सपोज ये m मास है। अब अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें तो हम फिर से वही लिख सकते हैं, दैट इज़ L इज़ इक्वल टू R इंटू mv। mv क्यों लिख दिया मैंने, मोमेंटम जो p लिखा था p की वैल्यू मैंने mv रख दिया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो ये हो सकता है r वेक्टर mv साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आया, आप देखिए r और v के बीच, r एंड v रेडियस एंड वेलोसिटी के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम रख सकते नहीं है, 90 डिग्री का बन रहा है तो साइन 90 डिग्री बन रहा है, r एम वी साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू एम वी आर साइन 90 डिग्री। जो r के ऊपर वेक्टर लगा इसको हम हटाएंगे तो ये साइन 90 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा सिंपल जो है L आ गया mv/r। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखिए आ गई mv/r। एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, दैट इज़ L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इंटू P वेक्टर। और एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा रिज़ल्ट आया था लास्ट में वो था L इज़ इक्वल टू mv/r। तो बेटा यहाँ तक तो सबको याद होगा। चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं इसके आगे। अब हम रख सकते हैं L इज़ इक्वल टू mv/r। mv/r क्या है हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ से, mv/r L के इक्वल है ना। और एक हमने पढ़ा था दैट L इज़ इक्वल टू NH/2π। अगर हम L की जगह mv/r रख दें, इसको पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी mv/r इज़ इक्वल टू NH/2π। NH/2π लिखा है ना। ये जो वैल्यू आ गई mv/r इज़ इक्वल टू NH/2π, इसी को बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला जाता है। ओके बेटा, दिस इज़ नोन एज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। यहाँ पे जो हमारा h है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखिएगा h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट था आपका बोर का, वो था while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए किस चीज़ की बात आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए सपोज हम एक पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कहाँ रिवॉल्व करेगा, आउटर मोस्ट यहाँ पे। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इसको दूसरे टर्म में देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या लिखा है मैंने, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। अब अगर हम कहें कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो F ऑफ E ये आपने पहले पढ़ चुका है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस वैल्यू को आप जानते हैं, ठीक है। और अगर हम यहीं से आपको बताएं कि E आपका इलेक्ट्रॉन है और ZE को अगर हम कहें न्यूक्लियर चार्ज है, ZE क्या है,
न्यूक्लियर चार्ज। अब और इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या इसको हम और एक टर्म बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर को Z से ही डिनोट करते हैं, तो वही चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ से जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या होगा। अब FE/FC के इक्वल करेंगे तो F ऑफ C सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, mv²/r आएगा। अब हम लिख सकते हैं, देखिए FE भी आ गया FC भी आ गया, FE को FC के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज़ इक्वल टू mv²/r। ठीक है। अगर हम Q1 Q2 के जगह सपोज़ Q1 आपका E है एंड Q2 आपका ZE है, तो अब आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/4πε0 EZE/r² दैट इज़ इक्वल टू mv²/r। और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो EZE है ना, E और E दो बार रिपीटेड है, इसको हम कह सकते हैं 1/4πε0 ZE²/r² इज़ इक्वल टू mv²/r। इस वैल्यू को बेटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इससे हमारा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। पोस्टुलेट था वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूजेस एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल या सेल, वो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। याद रखिएगा, ये भी किसने बोला था, ये बोर ने अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया। या हम कह सकते हैं कि जो सेल होंगी वो एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल पे होंगी। सेल्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। सपोज़ आपका n अगर 1 है तो इसको हम कहते हैं कि n अगर 2 आता है तो L, n इज़ इक्वल टू 3 है, M, n इज़ इक्वल टू 4 है तो n। ये आप जानते हैं K, L, M एंड N से।